Hello, Assalamu alaikum, dear student. Welcome to my YouTube channel. Dear student, I would like to say something about the success. Success is not an accident. It's your hard work, it's your perseverance, it's your learning, it's your studying. Moreover, if you're talking about success, you should love what you are doing. So, we are on first chapter of class Inter. Let's move to the today's topic, which is expression in man. So come to our new slide, which is expression in man. As you know about the expression is a removal of unwanted waste material or the byproducts. Man and mammals have excretory organs. Three main basic excretory organs are kidney, liver, skin, and their different functions. Like kidney have a osmoregulation and elimination of the waste like salt and water. Liver have the main function to excrete the nitrogenous waste and bile pigments, etc. Skin excrete the salt and some other substances along the sweat during the perspiration process. So let's come to the main topic, and which is as a liver as a homeostatic organ. First, you should know about what is liver and what is the position in our body. So liver is the largest reddish brown glandular organ which is located in abdomen just below the diaphragm. Diaphragm is the partition between the thoracic cavity and the abdominal cavity. And the sac-like gallbladder attached to the liver which helps in storing the biles. Bile is the juices-like substances which is secreted from the liver. And liver perform many functions. Some main homeostatic functions which they performs are: one is metabolism of carbohydrate and lipids. Its main function is to maintain the glucose level in the blood by oxidation of fats, and excess glucose convert into glycogen. As you know, when we are taking the diet, we eat some lipids and fats. So liver have the main function to metabolize the fats broken down into the small glucose molecule. And if excess glucose are in our body, it increases the blood sugar level. So it may be converted into the glycogen form and stored in the liver. As you seen in this picture, that if we intake some food, so in our blood, that increases the blood sugar level. So in blood sugar level, signals are moved into the pancreatic beta cells, release the insulin hormone. Insulin secrete in the blood, and adipose cells take up the glucose from the excess glucose in the blood and stored them in the fat form. Okay, and if decreasing the blood sugar level, continuously we do the exercise. So continuously अगर हम exercise करते रहेंगे तो same time पे क्या होगा, pancreatic alpha cells release होंगे from the glucagon. Glucagon hormone क्या करेगा कि जो लिवर के अंदर एक्सेस अमाउंट में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसको ब्रेक डाउन करता रहेगा. अब कंटिन्यूसली ग्लाइकोजन जब ब्रेक डाउन होगा तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज में. इस तरह से दोबारा क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहता है. तो ये क्या हो गई, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करवाना, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करवाना काम किसका है, लिवर का. Okay, second function of liver is deamination and urea formation. Body cannot store excess protein. You know about that when we intake the food, so have a various type of the chemical substances which we are eating, like carbohydrate, fats, lipids, proteins. तो अगर हम प्रोटीन कंटिन्यूसली इंटेक करते रहेंगे तो बॉडी तो प्रोटीन स्टोर नहीं कर पाएगी. तो अब क्या होगा, लिवर एकदम से एक्टिव हो जाता है. लिवर क्या करता है कि प्रोटीन जो एक्सेस अमाउंट में है
तो उसको ब्रोकन डाउन करता है इनटू अमाइनो एसिड्स। अच्छा, अब अमाइनो एसिड कंटिन्यूसली बनते जाएंगे तो वो भी नुकसान है। तो वो क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं डीअमाइनेशन को, कि अमाइनो एसिड और दोबारा ब्रेक डाउन होता है। अब अमाइनो एसिड दोबारा ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, कि रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप which then converted into ammonia and residual part of amino group used in metabolism of carbohydrate for respiration. It means जो अमाइनो एसिड था, अमाइनो एसिड को जब ब्रेक किया तो उसमें से जो अमाइनो पार्ट है उससे क्या अमोनिया बन गया, बाकी जो पार्ट है उसका वो क्या है, आगे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में यूज हो रहा होगा। अब क्या है, अब मसला हो जाता है अमोनिया। अमोनिया जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि अमोनिया जो हाईली टॉक्सिक है फॉर द सेल, इट मस्ट टू एक्यूमुलेट, सो अमोनिया इज सप्लाइड इनटू यूरिया साइकिल टू कंबाइन द अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब कंटिन्यूसली अमोनिया जब बॉडी के अंदर रहेगा तो नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या होता है कि अमोनिया जो है यूरिया साइकिल को आगे फॉरवर्ड करवाता है, अमोनिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर लेस टॉक्सिक यूरिया बना देता है, और फिर वही यूरिया मूव होता है टुवर्ड द किडनी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और आगे फिर बॉडी से पास आउट होता है। Here first you can see there that the amino acids, अब ये अमाइनो एसिड क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन, जिसकी वजह से अल्फा कीटो एसिड्स बनते हैं और अल्फा ग्लूटारेट जो एंजाइम है वो इसको ग्लूटामेट में कन्वर्ट करते हैं। अब ये ग्लूटामेट क्या करते हैं, जो हमारे पास ये ग्लूकोज डाइहाइड्राइड है उसकी जो है एडिशन से ये अमोनिया एंड अदर रिएक्शन से, इसके अलावा जो है यहाँ पे ऑक्सीडेट, ये मिलकर यहाँ पर क्या है, ये कंप्लीट एक केराटिनाइन, उसके बाद जो है ये डिफरेंट स्टेप्स के बाद अर्जिनाइन के बाद देन कंप्लीट यूरिया बनता है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एक यूरिया साइकिल बना है। थर्ड फंक्शन है लिवर का प्रोडक्शन ऑफ बाइल। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि बाइल के बारे में इतना नहीं था, अब हम पढ़ेंगे मोर डीप इन अबाउट बाय द बाइल। बाइल क्या होता है, येलोइश ग्रीन अल्कलाइन फ्लूइड होता है हैविंग अ बाइल पिगमेंट्स। अब यहाँ पे बाइल पिगमेंट्स है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो है उसका रेड कलर होता है, बिलीवर्डिन का ग्रीन कलर होता है। तो और इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स होते हैं लाइक सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम क्लोरोकोलेट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड म्यूकस। अब बाइल पिगमेंट्स का जो है असल में मिलते कहाँ से हैं, ये असल में होता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं फ्रॉम ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं आरबीसीज, आरबीसीज के अंदर होते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होगा तो उसका जो हीम पार्ट है वो आगे जाकर क्या है, पिगमेंट्स बनाएगा। इसका ग्लोबिन जो पार्ट होता है वो ब्रेक होता है, जिसकी वजह से into constituent of amino acid and recycle to form a new protein molecule। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली, जैसे हम कहते हैं आरबीसीज जो है 120 डेज में न्यू बनते हैं फिर टूटते हैं, तो ये सारा कंटिन्यूसली प्रोसेस होता रहता है। वो कहाँ होता है, ये इनकी ब्रेकडाउन, इनकी कन्वर्जन करवाना काम होता है लिवर के अंदर। अब आते हैं थर्ड इसका पॉइंट कि बाइल सॉल्ट्स जो हैं इनके लाइक जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट है, सोडियम टोरोकोलेट्स हैं, इनका मेन फंक्शन होता है इन डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक, उसके बाद हमारे पास है डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से हो, लिवर क्या करता है कि मॉडिफाई करवाता है ड्रग्स को, पॉइजन्स का। समटाइम ऐसा होता है कि हम कुछ ज्यादा ड्रग्स इनटेक कर लेते हैं, कुछ ऐसे पॉइजनस केमिकल हमारी बॉडी में इनटेक हो जाते हैं, तो अब लिवर क्या करता है, उसको हार्मलेस सब्सटेंसेस में मॉडिफाई करवाता है। इट ब्रेक डाउन द हाइड्रोजन peroxide by the help of catalase enzyme into hydrogen and oxygen, जिसकी वजह से भी क्या है, उसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक, उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो चीफली सिंथेसाइज होता है यहाँ पर। अगर ये कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर रहे तो ये या तो बाइल के जरिए बॉडी से पास आउट होता है, बाइल जूसेस जो है
जब ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड उसके बाद यहाँ से एक्सक्रीट आउट होते हैं फ्रॉम द एनस, तो ये वहां से आउटसाइड द बॉडी मूव होता है। अगर कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर रहेगा, मोस्टली किसमें, गॉल ब्लैडर में, तो इसके जो प्रेसिपिटेट हैं वो क्या करते हैं, आगे जाकर गॉल स्टोन बनाने में हेल्प करते हैं। और ये गॉल स्टोन जो है फिर आगे जाकर बड़ा खतरनाक साबित भी हो सकता है, जिसकी वजह से आगे जाकर जॉइंटिक होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं जब भी डाइट ली जाए तो एक मॉडरेट फॉर्म में, एक लिमिटेड फॉर्म में ली जाए, क्योंकि हर चीज की इनटेक जो है ज्यादा अगर होगी तो वो नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट थर्मोरेगुलेशन। ड्यू टू एफिशिएंट ब्लड सप्लाई, अब कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई हो रहा होगा लिवर को, तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी इंक्रीज होगा। जितना मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा तो उतना बॉडी के टेम्परेचर को भी लिवर क्या है, मेंटेन करवाता रहेगा। लास्ट है स्टोरेज ऑफ वाइटामिन्स। तो लिवर का और काम क्या होता है कि काफी जो वाइटामिन्स हैं उनको भी स्टोर करवाते हैं, लाइक जैसे ए, बी एंड डी। Thank you for your patience. This is our topic. I hope you enjoyed today's topic. Do like, comment, and share with your friends. Thank you. And if you are new, do subscribe my channel. Allah Hafiz.